ओम सुचिन्मय सद्गुरवे नमः। कठोपनिषद प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय, and we have completed till mantra number 16, 16. And what we saw over there, that Yamaraj, who has no asua, he is anusua, and his heart was really astonished, bewildered to see the divine intellect of Nachiketa. And he was very happy to see it. He was so content that he gave him an extra boon. That at the time of fire ritual, this fire's name will be Nachiketa fire. And not only that, he just gave him the most precious Ratnamalika. A lot of gems are there, studded. But here, one thing should be noticed, that Srinka may not be that necklace or garland. It may be some better karma vigyan. Means Yamaraj taught Nachiketa many other yagnas by which, if he performs, there will be wonderful sadgati. Clear? Trinachiketastriviritya sandhim trikarmakrit tarati janma mrityu brahma yajnam devam idyam viditva nichayemam shantimatyantameti. Once again, mantra number 17, 1.1.17. Trinachiketastriviritya sandhim trikarmakit trikarmakrit tarati janma mrityu brahma yajnam devamidyam viditva nichayemam shantimatyantameti. What is the prose order? Tribhihi sandhim etya trinachiketah trikarmakrit janma mrityu tarati brahma yagnam idyam viditva nichaya
इमाम शांतिम अत्यंतम एति. Clear? Not clear, Swamiji. What you told. Wait. I'm telling you the meaning. Tribhihi. With the three. What? Those three. Mata, Pita, Acharya. Clear? Or Veda, Smriti, or and Sadhu Sant Mahatma. Veda, Smriti, or Mahatma. Or with Pratyaksha Praman, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के साथ संधिम मतलब विद्या एत्य having got Trinachiketah who performs or who brings that Nachiketa fire 3 times, Trikarma Krit, he gets the result of 3 karmas. What is that 3 karmas? Yajna, Dana, Veda Adhyayan. Clear? Yajna means performing everything else with the spirit of sacrifice. Danam, charity to the sadhu, sant, acharya, and the Bhagavan in the form of poor. That 3 karma, Janma Mrityu Tarapi. And with the result of 3 karma, that individual crosses over the cycle of birth and death. Brahmajagnam. Brahmajagnam means Hiranyagarbha, who is knowledgeable about Hiranyagarbha and Virat, the total subtle element and total gross element. Idiom. Idiom means Vandaniyam, praiseworthy. Devam. Devam means here that Virat, the total gross expression. Viditva, having known. Having known means not realized over here. Here, in an indirect way, through Shastra and Guru. Nichaya. Ahangraha Upasana. I will tell you what is Ahangraha Upasana. Ahangraha Upasana के साथ इमाम
शांतिम अत्यंतम एति. He attains the eternal peace. मतलब अगर कोई माता पिता और आचार्य अथवा वेद स्मृति और साधु व्यक्ति अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के साथ जिन्होंने गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण किया, ये यज्ञ कैसे करूं, ये व्यक्ति अगर 3 बार उस नचिकेता अग्नि को चयन करते हैं, चयन मतलब अग्नि को आह्वान करना पड़ता है. जिन्होंने ठीक ठाक यज्ञ देखा, घर में पंडित जी आकर यज्ञ करने से वो ऐसे करके लगा के यज्ञ कुंड में आग लगा देता है, ऐसे नहीं. Those who have seen the yajna, by the grace of Guru, I have learned. So here, Vijayamma have noticed how the yajna should be performed. That the Agni should be brought and performed in a different way. Okay. तो 3 बार नचिकेता अग्नि को चयन करते हैं. उन्होंने 3 कर्म की अधिकारी होती है. त्रिकर्मकृत मतलब 3 कर्म करने से जो फल होता है, ऐसे कर्म की अधिकारी होता है. वो है यज्ञ, अध्ययन और दान. यज्ञ, अध्ययन और दान, ऐसे 3 कर्म करते हैं. और उन्होंने जन्म मृत्यु को पार कर, जन्म मृत्यु को पार करते हैं मतलब क्या? शास्त्र को ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा. ये जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है हमारे. जीवन मतलब परफॉर्मिंग slavery of my own vasanas. Jivan means performing slavery of my own vasana. Vasana means स्वाभाविक कर्म प्रवृत्ति, निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति. तो जन्म मृत्यु को पार करते हैं मतलब उन्होंने जीते जी, while living, he crosses over the vasanas of swabhavik karma pravritti and nishiddha karma pravritti. Clear? And then हिरण्यगर्भ से प्राप्त ये ज्ञान, क्योंकि जो ज्ञान हम लोग देख रहे हैं, पा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कहां से आया ना? हिरण्यगर्भ से आया. हिरण्यगर्भ इज लाइक गूगल. अब कुछ भी चीज गूगल कर लो. इन अ ग्रॉसेस्ट वे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये गूगल में आप कुछ भी करो ना, वो आंसर दे देता है. As if Google is the hub of knowledge. Likewise, Hiranyagarbha as if the hub of knowledge. So all the knowledge we get, actually it is from the Hiranyagarbha. And here Virat means Shastra.
सो हिरण्यगर्भ से प्राप्त शास्त्र से ज्ञान सुनकर, जानकर, उपलब्धि कर कर ये व्यक्ति शांति को प्राप्त करते हैं। वंडरफुल ना, that you won't get in the book, and maybe it's very interesting, very interesting. Kathopanishad is just unparalleled, and each and every word, without teacher, it's very difficult to expound. So the mantra is a strange riddle, and certainly it had not been for Sri Shankaracharya's commentary. The modern students of Upanishad would have gasped at this mantra. But that need not necessarily mean that even in the days of the Vaidika period, these mantras were equally confusing riddles. At that time, students were so well grounded in the Vaidika lore and practices that to them this language was self-explanatory and needed no special commentary. And wherever special commentary was needed, certainly the great rishis of Upanishads must have given their students long discourses and explanations. So, threefold Nachiketa fire. First one. It may mean one who has performed thrice the Nachiketa sacrifice, or it may mean he who learns, knows, and performs the Nachiketa fire sacrifice. And number three, since Nachiketa fire seems to be a form of Agnihotra, the three may mean the usual worldly fire, means Garhapatya, Ahvanya fire, and Dakshina fire. Clear? United with the three, here again it may mean three things. First one who has the three great influences, namely the father, the mother, and the teacher. That is, he who has these three great forces of blessings and who, through obedience and reverence to them all, has come to claim their blessings. Or, number two, the three may refer to the three sources of knowledge: direct experience, pratyaksha pramana; inference, anumana pramana; or words of the wise,
आगमज और शब्द प्रमाण. According to Bhagavan Shankaracharya ji, it may also mean Vedas, the Smritis, and the declaration of wise men, Shastra. So the three duties, the threefold karmas that every Brahmana householder is expected to perform daily, that is sacrifice, chanting of Vedas, and giving charity. Danam, Annadanam, to the creatures, to the poor. Arthadanam, Vastradanam, and mainly to the poor or Sant, Mahatma, and Acharya. So we should ask, not to me, any other acharyas you are having. So you should ask what you require, what you need. In this regard, आपका क्या जरूरत है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ. That will be a householder's duty. You have to perform. It is not only matter of listening or spiritual entertainment. देखिए वेद माता जब बोल रहे हैं, मतलब इसका कितना बड़ा इफेक्ट है इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ. बिकॉज वेदा इज लाइक मदर. इट ऑलवेज tries to protect the children. We are Veda Mata's children. We are taking refuge to Veda because we are listening Upanishad right now. We should perform. इतना जरूरत नहीं, किसी को एक पैकेट बिस्किट दे दो प्रेम से. किसी को पूछो, कोई साधु संत आ जाए तुमसे पूछो क्या जरूरत है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं. अगर वो व्यक्ति लोभी है और बहुत सारे जरूरत है, देन यू हैव टू गिव अ ब्रेक. अदरवाइज अगर वो कुछ नहीं चाहते, यू शुड आस्क व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हाउ कैन आई हेल्प. He may tell, no, I don't want anything else. That's a different. But as a householder, it will be your duty. Mainly, Annadanam, Vastradanam, Arthadanam, Aushadhapatthidanam, Pathadanam, and Vidyadanam. Those who can afford to act up to all the above instructions shall come to enjoy a comparative peace and rest from the world of life and death in this very life. You got the point, no? You understood the.
और थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो एक्सप्लेन कर देते। 3 बार त्रिनाचिकेत, 3 बार जिन्होंने नचिकेत यज्ञ की अनुष्ठान किया है, मतलब अध्ययन करके गुरु के पास से सीख कर ज्ञान लाभ और अनुष्ठान के द्वारा नचिकेता अग्नि के बारे में पारदर्शिता लाभ किया है। और त्रिभी संधिम एत्य, माता पिता और आचार्य, ये तीन के साथ बहुत करीब संबंध होना चाहिए। माता पिता और आचार्य, देखिए बताया नहीं कि हस्बैंड वाइफ, माँ पे, यू जस्ट लिसन, दिस इज शंकराचार्य जी's commentary, I'm just telling you। क्योंकि इन तीनों का उपदेश पाकर परंपरा से लोग अपनी चरित्र को पूर्ण करते। कितना सुंदर बात बताए यमराज। मनुष्य चरित्र की पूर्णता के लिए इन तीनों जगह से शिक्षा लाभ करना प्रयोजन। जब तक आपका उपनयन संस्कार ना हो जाए तब तक मां के पास से, उपनयन की समय पिता के पास से, क्योंकि पिछले जमाना में पिता ही उपनयन संस्कार करवाते थे। और जब पिता की विद्या पूरा के पूरा आ जाएगा तब आचार्य के पास से ब्रह्म विद्या, मंत्र, आध्यात्मिक पाठ लेने से विद्या संपूर्ण होता है। इसके बारे में दूसरा श्रुति में, लाइक बृहदारण्य उपनिषद में 4.1.2, बृहदारण्य उपनिषद ऐसे बताया है, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात्, तथा तच्छैलिनी तच्छैलिनीरव्रवीत्। लोग जैसे माँ बाप और आचार्य के पास से उपदेश पाकर ज्ञान संपन्न होकर बोल पाते हैं, शिलीन की पुत्र, शिलीन मतलब एक ऋषि, तत् शैलिनी ही अब्रवीत, ऐसे ही शिलीन की पुत्र ऐसे ही बताए थे। विद्या की परिपूर्णता ऐसे ही आता है। हमारे शास्त्र जन्मांतरवाद को मानते हैं। जन्म से पहले संतान की शिक्षा आरंभ हो जाता है। कैसे? न शास्त्र बोल रहा है कि अगर कोई दंपति सत्पुत्र की माँ बाप होना चाहते हैं तो माँ बाप को तपस्या करना पड़ेगा, भोग नहीं। अब भागवत में देखिए, जितना ऋषि मुनि उनके विवाह से पहले उन लोग तपस्या कर रहे हैं, बाद में उन दोनों का विवाह हुआ, उन दोनों तपस्या में चला गया, एंड तपस्या से लौट कर
उनका जो संतान हुआ, दे बिकेम ऋषिज, लाइक दे बिकेम ऋषिज। तो अगर हम सब ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्री चाहते हैं, तो हमारे तपस्या की इतनी जरूरत। यू शुड टीच अदर्स। जो आपके पास कोई शादी की कार्ड लेकर आते, यू शुड टेल देम कि बेटा या बेटी, अगर बहुत नॉलेजेबल, अच्छा, सोबर पुत्र या कन्या चाहते हो, तो तपस्या की जरूरत होता है। गुरु, साधु, संत, महात्मा की स्मरण में आओ, उनका शिक्षा ग्रहण करो और ऐसे जिंदगी जी लो। तब एक बच्चा ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्री होती। वॉट एवर यू वांट, दैट इज द दैट शुड बी द फ्रूट ऑफ योर ओन कर्म, ओन तपस्या। मैं आम का पेड़ लगाने से तब ना आम पैदा होगा। मैं दूसरा पेड़ का बीज बोया और एक्सपेक्ट कर रहा हूं आम, इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको ही तपस्या करना पड़ेगा। तो एक बच्चा की शिक्षा की सूचना होता है उनका जन्म से पहले, और उसके बाद जन्म से ये क्रम चलता रहेगा। हर पल में उन्होंने अपने मां के पास से शिक्षा अर्जन करे, एज इफ फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क द चाइल्ड गेट्स नॉलेज। वही शिक्षा क्रमः जीवन की क्षेत्र में प्रसारित होते, एक्सपैंड। उसके बाद आता था आते हैं पिता की शिक्षा। जब वहां पर शिक्षा संपूर्ण होगा, तब आचार्य के पास। मैं कोई व्यक्ति के पास, मेरे बात छोड़, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी शिवानंद जी के पास आया। द इंटायर डायमेंशन ऑफ his darshan, entire dimension of his life has been changed. स्वामी शिवानंद जी के पास उन्होंने शिक्षा लाभ किया। उसके बाद उनके मन में जब और प्रश्न आया, उन्होंने बोला बेटा अभी तुम्हें दूसरा गुरु के पास जाना पड़ेगा। देखिए, कोई अभिमान नहीं। हम लोग कर सकते क्या? हम लोग सोचते अरे इन लोग तो सब, मेरा स्टूडेंट दिवाकर चैतन्य का स्टूडेंट, ये सब दूसरे आचार्य के पास क्यों पढ़ने जाते हैं? ऐसा अगर होगा तो दिवाकर चंद चैतन्य का विनाश निश्चित है। ही शुड एनकरेज दैट, बाकी लोगों का भी सुनिए। कितना संत महात्मा कितना अच्छा बोल रहे हैं, यू शुड लिसन टू। वन आचार्य शुड इंस्पायर स्टूडेंट्स। कैसे वो अपने क्योंकि ज्ञान में मोनोपोलिज्म नहीं है। इट इज नॉट माई नॉलेज, आई हैव गॉट इट फ्रॉम आचार्य परंपरा, and the same knowledge is getting expressed from different acharyas in different ways.
but the content knowledge is same and it is product of the lineage. And अगर ऐसे जो कर्म करते हैं, यज्ञ, दान और वेद अध्ययन, ऐसे करके जो खुद को प्रस्तुत करते हैं, किसके लिए? he becomes eligible he becomes eligible for तरति जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु को अतिक्रम कर। कैसे? अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग एश्योर ना कर सके, क्योंकि स्वर्ग जाने का बहुत सारे क्राइटेरिया है। दूसरे मजहब में ऐसा है कि लोग मारने से ही आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पता नहीं वो स्वर्ग कैसे, क्योंकि हर कर्म का तो एक इफेक्ट होता है। आप मिट्टी को लेकर उसका बर्तन बना रहे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सोना की हो जाएगा, है ना? जो कर्म आप करेंगे ऐसे ही फल मिलेगा। जो स्वर्ग लोगों को मारने से, पीड़ा देने से आता है, वो स्वर्ग कैसे हो? हमारे जो सनातन धर्म की जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, दैट if you want to attain, there are a lot of conditions are there. इससे अच्छा, और वो भी चिरंतन नहीं, इससे अच्छा है तो मोक्ष प्राप्ति सीधा भी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लिसन टू कठोपनिषद फ्रॉम 7:30 रेगुलरली, भगवत गीता ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड रामचरित मानस सोमवार और बुधवार, और चैंटिंग क्लास करना पड़ेगा गुरुवार को। ये करने से ही आपका मुक्ति निश्चित है, शास्त्र बोल रहा है। तो इट्स बेटर, इट्स इजीएस्ट वे ना। नहीं तो कितना कुछ आपको नचिकेता अग्नि के बारे में जानना पड़ेगा, 72 ईंटा आपको जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा। अभी फ्लैट में कहाँ जगह है, आग लगाने का अनुमति नहीं है, फायर अलार्म है, सब कुछ ना कुछ है। इससे तो जीवन मुक्त बनना सीधा है, सरल। तो और जीवन मुक्त बनने का पहला शर्त है 7:30 बजे की क्लास करना पड़ेगा। शांतिम ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम विदित्वा निचाये माम शांतिम अत्यंतमेति। ब्रह्मज मतलब ब्रह्म से जायते, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से पहले ही उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब ज्ञान, द हब ऑफ नॉलेज, प्रकाशमान, देवम ईड्यम, जो पूजनीय है, जो पूज्य है, उनको जानकर, एवं निचाय, निचाय मतलब उनके साथ एक होना। Unless and until your vision is not aligned with your acharya, if your mindset, your mentality right now is not in line with your acharya, then vidya will not be completed. So that alignment with your shastra, acharya and your own mind, जब ऐसे होता है, इमाम शांतिम अत्यंतमेति,
ये संवेद्य मतलब ये शांति अपने हृदय में निरंतर अनुभव होता है। यमराज खुद उस शांति की अधिकारी थे। जो अधिकारी नहीं है वो ऐसे करके बोल नहीं सकते। इसीलिए यमराज बोल रहे हैं कि जीवन में कुछ भी आ जाएगा, तूफान आधी जीवन में हर लोगों का, लेकिन उनका शांति कभी विघ्नित नहीं। एंड कितने साल के लिए वारंटी है इस शांति की? अपार, इटर्नल। हरि ओम।